السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا اور میں ہوں عروج فاطمہ۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائن۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کمیشن کی اپیل پر سپریم کورٹ میں سماعت مکمل، فیصلہ کچھ دیر میں سنایا جائے گا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ بحیرہ عرب میں پاک بحریہ کے جہازوں کی تعیناتی پر سوشل میڈیا پر من گھڑت اور بے بنیاد پروپیگنڈا۔ یمن میں حوثیوں کے خلاف امریکی اتحادی حملوں کا پاکستان نیوی کے جہازوں کی تعیناتی سے کوئی تعلق نہیں۔ جہازوں کی تعیناتی کو ٹاسک فورس 153 سے منسلک کرنے کی کوئی حقیقت نہیں۔ پیٹرولنگ کا مقصد صرف پاکستان کی تجارتی گزرگاہوں کی حفاظت یقینی بنانا ہے۔ الیکشن کمیشن کی عام انتخابات کی تیاریاں، امیدواروں کی جانب سے پارٹی ٹکٹ جمع، انتخابی نشان اور حتمی فہرستیں آج جاری کی جائیں گی۔ پولنگ سٹیشنز کی حتمی فہرست انتخابات سے 15 روز قبل آویزہ ہوگی۔ الیکشن کمیشن ملکی معاشی استحکام کے لیے انقلابی منشور کی ضرورت ہے۔ پیپلز پارٹی کے 10 نکاتی انتخابی منشور میں ملکی مسائل کا حل ہے۔ وفاق سمیت 4 صوبوں میں عوام کی نمائندہ حکومت بنائیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا بہاولپور میں جلسے سے خطاب۔ ملک ترقی کے لیے باکردار قیادت ضروری ہے۔ عوام اپنے ووٹ کی طاقت سے کرپٹ مافیا کا احتساب کریں۔ اسلامی نظام کے نفاذ سمیت عوام کے لیے فلاحی منصوبے شروع کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا 410 میں جلسے سے خطاب۔ مسلم لیگ نون انتخابات میں کسی قسم کی تاخیر نہیں چاہتی۔ منتخب قیادت ہی ملک کو موجودہ بحران سے نکال سکتی ہے۔ پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف معاہدے کی خلاف ورزی کر کے ملک کو معاشی نقصان پہنچایا۔ رہنما مسلم لیگ نون خواجہ سعد رفیق کا لاہور میں ورکرز کنونشن سے خطاب۔ غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں صہیونی فورسز کے حملوں میں تیزی، خان یونس اور رفح سمیت مختلف علاقوں پر بمباری۔ ایک روز میں مزید 135 فلسطینی شہید، مجموعی تعداد 23,843 ہو گئی۔ شہداء میں 10,000 بچے بھی شامل۔ غزہ کے بیشتر علاقوں میں مواصلات کا نظام درہم برہم۔ الاقصی ہسپتال میں ایندھن کی کمی، زخمیوں کے علاج معالجے میں شدید مشکلات کا سامنا۔ پاکستان مشکلات میں گھرے فلسطینی بہن بھائیوں کی امداد میں پیش مزید 20 ٹن امدادی سامان کی چوتھی کھیپ روانہ۔ طبی سامان، خشک کھانے کی اشیاء اور حفظان صحت کی کٹس بھی شامل۔ خصوصی پرواز امدادی سامان لے کر اردن پہنچے گی۔ پاکستان مشکل کی اس گھڑی میں فلسطینیوں کے ساتھ ہے۔ وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ شمالی وزیرستان اور ڈیرہ اسماعیل خان میں خفیہ اطلاعات پر آپریشنز، 4 دہشت گرد مارے گئے۔ میر علی آپریشن میں انتہائی مطلوب دہشت گرد کمانڈر تبسم عرف قادر مان ہلاک۔ دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں، شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ اور دہشت گردی کی متعدد وارداتوں میں ملوث تھے ISPR۔ بھارتی یوم جمہوریہ سے قبل مقبوضہ وادی میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں میں تیزی۔ گھروں میں چھاپے، مکین ہراساں، اشیاء کی توڑ پھوڑ۔ بدترین بھارتی ریاستی دہشت گردی پر عالمی برادری کی خاموشی افسوسناک ہے۔ وحشیانہ کارروائیوں پر بھارت کا محاسبہ کیا جانا چاہیے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس۔ بی جے پی دور حکومت میں بھارتی مسلمانوں کا جینا دو بھر۔ سیاسی مقاصد کے لیے 22 جنوری کو بابری مسجد کے مقام پر رام مندر کے افتتاح کی تیاریاں۔ انتخابات میں انتہا پسند ہندوؤں کی حمایت کے لیے مسلمانوں کے لیے زمین تنگ کر دی گئی۔ انتہا پسندوں نے انتشار اور فساد پھیلانا شروع کر دیا۔ جرمن خبر رساں ادارے DW نے مودی کے اوچھے ہتھ کنڈوں کا راز فاش کر دیا۔
पंजाब हुकूमत के सूबे में सरमायाकारी के फरोग के लिए इकदाम। वजीर आला पंजाब ने सियालकोट में भी कारोबार सहूलत मरकज का इफ्तिताह कर दिया। मुल्तान, गुजरांवाला, फैसलाबाद और रावलपिंडी में भी सेंटर्स बनाए जाएंगे। वजीर आला पंजाब का सियालकोट एयरपोर्ट से शहर तक सड़क 15 फरवरी तक मुकम्मल करने का भी ऐलान। सिंध के अजीम शाह शेख अयास का 7 साला यौम पैदाइश। वफाकी वजारत तालीम और वजारत इत्तलात के ज़ेर एहतमाम रंगारंग तकरीब। शेख अयास तरक्की पसंद सोच और मज़ाहमत का इस्तारा थे। वफाकी वज़रा मुर्तज़ा सोलंकी, मदद अली सिंधी, जमाल शाह का खिराज अक़ीदत। तकरीब में शेख अयास के कलाम पर पेश किए गए सकाफ़ती रक़्स ने समा बांध दिया। 9 मई के शरपसंद अनासिर को कानून के कटहरे में लाना कौमी मफाद का तकाजा। मखसूस जमात के सरकर्दा कारकुनों के बराह रास्त मुलव्विस होने के नए शवाहिद सामने आ गए। वीडियो में शरपसंद हुजूम को लाहौर कंटोनमेंट के दाखिली दरवाजे के सामने सड़क बंद करते देखा जा सकता है। मखसूस जमात का कारिंदा इबाद फारूक मुश्तिल हुजूम को तोड़ फोड़ पर उकसाता रहा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा T20 मैच कल हैमिल्टन में खेला जाएगा। मुकाबला दिन 11:10 से PTV पर स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। कौमी टीम ऑकलैंड से हैमिल्टन पहुंच गई। 5 मैचेस की सीरीज में मेजबान न्यूजीलैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन की अपील पर PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुकम्मल हो गई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। फैसला कुछ देर में सुनाया जाएगा। बहिरा अरब में पाक बहरिया के जहाज़ों की तैनाती पर सोशल मीडिया पर बेबुनियाद और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक पाक बहरिया ने इस हवाले से तमाम खबरों की तरदीद करते हुए कहा है कि यमन में हूसियों के खिलाफ अमरीकी इत्तहादी हमलों का पाक बहरिया के जहाज़ों की तैनाती से कोई ताल्लुक नहीं है। सोशल मीडिया पर पाक बहरिया के जहाज़ों की तैनाती को टास्क फोर्स 153 से मुंसलिक करने की कोई हकीकत नहीं है। पाक बहरिया के जहाज़ों की बहिरा अरब में तैनाती को हूसियों के खिलाफ अमरीकी कार्रवाई से जोड़ना सरासर बेबुनियाद और मनफी प्रोपेगेंडे पर मबनी है। अमेरिका ने बहिरा अहमर में हूसी हमलों के खिलाफ टास्क फोर्स 153 बनाने का ऐलान किया था। पाकिस्तान ने इस टास्क फोर्स 153 में शामिल होने की अमरीकी दावत को मुस्तरद कर दिया था। पाकिस्तान बहिरा अहमर में टास्क फोर्स 153 और ऑपरेशन पर स्पिरिटी गार्डियन का हरगिज़ हिस्सा नहीं है। पाक बहरिया किसी भी सूरत यमन के खिलाफ कभी इस्तेमाल हुई है न होगी। पाक बहरिया हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक मसला फ़लस्तीन की मुकम्मल हिमायत करती है और हूसियों के दरमियान किसी भी तनाज़े में फरीक नहीं है। पाकिस्तान खलीज फोर्स और अबनाए हरमस जैसी अहम तरीन समंदरी गुजरगाहों के दहाने पर वाक़ है, जहाँ से बड़े पैमाने पर ऑयल टैंकर्स की आमदोरफ्त होती है। पाक बहरिया के जहाज बहरा अरब में पाकिस्तान के तिजारती रास्तों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मुसलसल पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ समंदरी तिजारती गुजरगाहों की मुसलसल फ़ज़ाई निगरानी भी की जा रही है। पेट्रोलिंग का मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की तिजारती गुजरगाहों की हिफाजत को यकीनी बनाना है। पाक बहरिया के जंगी जहाज बहरा अरब में हमेशा पेट्रोलिंग करते रहते हैं। नाज़रीन, आम इंतखाबात के लिए तैयारियों का सिलसिला जारी है। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात आज अलॉट किए जाएंगे। इंतखाबात से 15 रोज कबल पोलिंग स्टेशन की हतमी फहरिस्त आवेजा की जाएगी। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग 8 फरवरी को होगी। कौमी और सूबाई असम्बली की खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज आखिरी दिन था। बलूचिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के फैसलों पर अपीलें दायर करने की आखिरी तारीख 16 जनवरी है। एपलेट ट्रिब्यूनल अपीलों पर फैसले 19 जनवरी तक करेंगे। 23 जनवरी को मखसूस नशिस्तों को उम्मीदवारान की फहरिस्त जारी की जाएगी।
नाज़रीन, बाज़ अखबारात में बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग प्रेस में अशात के बाद उन्हें डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के दफातर तक तरसील के अमल के दौरान सिक्योरिटी के हवाले से खबरें शाया हुई हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग प्रेस में अशात के बाद उन्हें डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के दफातर तक बाहिफाजत पहुंचाने की जिम्मेदारी मुतल्लका DROs या उनके नामजद अहलकारों की होती है, जो अपनी निगरानी और मुकामी पुलिस के अहलकारों की हिफाजती तहवील में बैलेट पेपर्स की बाहिफाजत नकलो हमल को यकीनी बनाते हैं। बाज़ जगहों पर हालात की संगीनी के पेश नज़र पाक फौज के एहलकार भी बैलेट पेपर्स की नकल हमल के दौरान सिक्योरिटी फराहम करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ मुनिस इलाही की दरख्वास्त खारिज कर दी है। मुनिस इलाही ने गुजरात से कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 1 नशिस्त से कागजात नामजदगी जमा कराए थे। फुल बेंच ने रिटर्निंग अफसर और इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसलों को बरकरार रखते हुए मुनिस इलाही की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला कलअदम करार देते हुए कैसरा इलाही को NH 64 और PP 32 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कैसरा इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला बरकरार रखा था। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी 10 निकाती एजेंडे पर इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। इंशाअल्लाह चारों सूबों और विफाक में हुकूमत बनाएंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब में वजीर आला पीपल्स पार्टी का होगा। तफसील ख्वाजा मोहम्मद कलीम से। बहावलपुर में इंतखाबी जलसा से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान तारीख के मुश्किल तरीन मुआशी बहरान का शिकार है। हमें आज फिर एक इनकलाबी मंशूर की जरूरत है, जैसे कायदे अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो ने रोटी कपड़ा और मकान का नारा दिया था। हमारा मुकाबला किसी सियासी पार्टी से नहीं है, ना ही हमारा मुकाबला किसी सियासतदान से है। हमारा अगर मुकाबला है तो इस बेरोजगारी से है, इस गुर्बत से है, इस महंगाई से है, और इंशाअल्लाह आप हमें मौका देंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि कैसे अवामी हुकूमत बनाया जाता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि दूसरी जमातें अशराफिया, जबकि पीपल्स पार्टी गरीबों की नुमाइंदा जमात है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी 10 नकाती अवामी मुआशी एजेंडे पर इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। हुकूमत मिली तो 10 नकाती प्रोग्राम पर अमल करेंगे। चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो जनूबी पंजाब हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही जीतेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ वफाकी हुकूमत बनाएगी, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबाई हुकूमत भी बनाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला एक जियाला वजीर आला पंजाब बनाएगा। उन्होंने कहा कि आज एक जेल से बचने और दूसरा जेल से निकलने के लिए इंतखाबात में हिस्सा ले रहा है, लेकिन पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो अवाम के लिए इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। ख्वाजा कलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, बहावलपुर। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इनकी जमात मुल्क में नफरत की सियासत का खात्मा करके कौम को जोड़ने की राह पर गामजन रहेगी। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कभी कौम से 50 लाख घरों और 1 करोड़ नौकरियों की फराहमी का झूठा वादा नहीं किया, बल्कि कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने अवाम से किए तमाम वादे पूरे किए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मुल्क से महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत का खात्मा हमारी अव्वलीन तरजीह है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि पीपल्स पार्टी ही वाहिद जमात है जो गरीबों के हुकूक की जंग लड़ रही है। पीपल्स पार्टी ने न सिर्फ मुल्तान बल्कि जनूबी पंजाब के अवाम की हमेशा खिदमत की है। सराइकी खित्ते पर मुश्तमिल अलग सूबे का क़याम भी यकीनी बनाएंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने 4 सदम इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि उनकी जमात में किरदार और दयानत देकर क़यादत सौंपी जाती है। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी जमहूरी, इस्लामी और अवामी जमात है। उनका मजीद कहना था कि इक़्तिदार में आकर सुदे निज़ाम के खात्मे, इस्लामी निज़ाम के नफाज के अलावा रोज़गार, तालीम और इलाज से महरूम करोड़ों आवाम के लिए बेहतरीन फलाही मनसूबे शुरू करेंगे। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि मुल्क की तरक्की के खातिर अवाम को बाकिरदार क़यादत का इंतखाब करना होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून इंतखाबात में 1 घंटा भी ताख़ीर नहीं चाहती, क्योंकि एक मुंतखब क़यादत ही मुल्क को मौजूदा बहरानों से निकाल सकती है। लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि साबिक दौर में IMF से मुआहिदा तोड़कर मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाया गया। मुस्लिम लीग नून का हर दौर मुल्क की माशी तरक्की का दौर रहा है। हमने इतनी रफ्तार से काम किया कि चीनी भी हैरान रह गए। कॉर्नर मीटिंग से दीगर मुकर्ररीन ने भी खिताब किया और कहा कि मुस्लिम लीग नून इंतखाबात में कामयाब होकर अमन, रोजगार और तरक्की लेकर आएगी।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बुरजीज ताहिर ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने साबिका दौरे हुकूमत में मुल्क में अमन अमान बहाल किया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक फौज के साथ मिलकर मुख्तलिफ ऑपरेशन का आगाज किया गया, जिससे मुल्क में दहशतगर्दों का सफाया हुआ। सांगला हिल में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए उनका कहना था कि PTI के दौरे हुकूमत में मुल्क में एक भी तरक्याती काम नहीं हो सका। आज मुल्क में बेरोजगारी और महंगाई उरूज पर है। बुरजीज ताहिर ने कहा कि अगर दोबारा मौका मिला तो पाकिस्तान से महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा करेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह ने आइंदा आम इंतखाबात के लिए फैसलाबाद से अजमल चीमा को पार्टी टिकट जारी कर दिया। फैसलाबाद से IPP के वफ्द ने पार्टी सरबराह जहांगीर तरीन से मुलाकात की, जिसमें PP 98 फैसलाबाद से अजमल चीमा को टिकट जारी किया गया। इस मौके पर ओन चौधरी भी मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती की सरबराह अख्तर इकबाल डार ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इंतखाबी इत्तेहाद की खबरों को बेबुनियाद करार देते हुए इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि PTI के जिन उम्मीदवारों ने नजरियाती के नाम पर जाली टिकटें जमा करवाईं, उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाए। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए PTI नजरियाती के सरबराह अख्तर इकबाल डार ने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ की करप्शन, दोष धांधली और पैसे का इस्तेमाल देखकर उन्होंने तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। उन्होंने कहा कि करप्शन की सजा दिए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अख्तर इकबाल डार ने कहा कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की जानिब से उनकी जमात के इंतखाबी निशान के नाम पर इलेक्शन कमीशन को जमा करवाई जाने वाली टिकटें जाली है, जिसकी तहकीकात इलेक्शन कमीशन को करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो खुद कौमी असम्बली के हल्का NA 115 से आम इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि इनकी जमात ने कौमी सूबाई के अपने 150 उम्मीदवारों को टिकटें जारी की हैं। इंतखाबात के लिए सिंध भर में गहमा गहमी जारी है। सियासी जमातों ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। मज़ीद तफसील हसन नासिर सिद्दीकी से जानिए। जमीयत उलमा इस्लाम फे ने सिंध में इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। कौमी असम्बली के 19 हलकों पर पार्टी उम्मीदवारों को टिकट जारी किए, जबकि 52 सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों का इंतखाब किया गया। NA 193 और NA 194 मौलाना राशिद महमूद सुमरो, NA 196 से मौलाना नासिर महमूद सुमरो इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। सक्खर में जर्नलिस्ट फोरम की तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद अहमद शाह ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम भरपूर जारी है और पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के जलसों में अवाम की बड़ी तादाद हमारे मंशूर की कामयाबी का सबूत है। जामशोरो PS 77 पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अब्दुल हसीब राजपूत साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के हक में दस्तबरदार हो गए हैं। तकरीब से खिताब करते हुए सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि इलेक्शन अवाम की आवाज़ हैं और अवाम की राय का एहतराम हम सब पर लाजिम है। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने अवाम को महंगाई से निकालने के लिए माशी प्रोग्राम तरतीब दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी इलेक्शन मॉनिटरिंग सेल के इंचार्ज ताज हैदर ने कहा कि चेयरमैन PPP का 10 नुकाती प्रोग्राम काबिल अमल है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि PPP ने सिंध में सेहत और तालीम के शोबों में अजीम कामयाबी हासिल की हैं। मरकजी मुस्लिम लीग जामशोरो के ज़िले सदर अब्दुल तवाब खान ने कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि अवाम 8 फरवरी को अपने शऊर की बुनियाद पर अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान शकील कादिर खान ने आम इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में यूब डिवीजन का दौरा किया और इंतखाबात के हवाले से हुकूमती इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत की रोशनी में आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों को हतमी शक्ल दी गई है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज ने 26 जनवरी को भारतीय यौम जमहूरिया से कबल महासरे और तलाशी की कार्रवाई और घरों पर छापों का सिलसिला तेज कर दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मुख्तलिफ अजला के मकीनों ने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों को बताया कि भारत का यौम जमहूरिया हमेशा उनके लिए मजीद मुश्किलात का बाइस बनता है। उन्होंने कहा कि भारतीय फौजी इन्हें शदीद सर्दी में घंटों खुले आसमान तले खड़ा रखते हैं और ज़बरदस्ती घरों में दाखिल होते हैं, मकीनों को खौफजदा करते हैं और घरेलू अशिया की तोड़ फोड़ करते हैं। न्यूयॉर्क में कायम ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी आलमी रिपोर्ट में कहा है कि भारत ने 2023 में भी मकबूजा कश्मीर में इजहार राय की आज़ादी, पुरअमन इज्तिमा और दीगर बुनियादी हुकूक पर पाबंदियां जारी रखी। रिपोर्ट में कहा गया कि नाकदीर और इंसानी हुकूक के मुहाफिजों को झूठे इल्जामात की बुनियाद पर छापों और गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट में इंसानी हुकूक के कश्मीरी कारकुनों खुरम परवेज, मोहम्मद एहसन उन्तो और इरफान मिराज की गैर कानूनी गिरफ्तारी का भी जिक्र किया गया है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने सिविल सोसाइटी और इंसानी हुकूक के मुहाफिजों को निशाना बनाने के लिए काले कवानीन के इस्तेमाल की मजम्मत की है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा कि ह्यूमन राइट्स वॉच की ताज़ा रिपोर्ट आलमी बरादरी के चश्म कुशा है, जिसे मकबूजा कश्मीर में वहशियाना कार्रवाइयों पर भारत का मुहासबा करना चाहिए। हुर्रियत तर्जुमान ने मकबूजा इलाके में बदतरीन भारतीय रियासती दहशतगर्दी पर आलमी बरादरी की खामोशी को अफसोसनाक करार दिया।
دہلی کی ایک عدالت نے کشمیری نوجوان جاوید احمد کے پولیس ریمانڈ میں 5 روز کی توسیع کر دی ہے۔ بھارتی پولیس نے سوپور کے رہائشی جاوید کو کئی پرانے جھوٹے مقدمات میں رواں ماہ کی 4 تاریخ کو نئی دلی سے گرفتار کیا تھا۔ ڈاکٹر غلام نبی فائی، سردار آفتاب روشن، ظریف خان اور دوسرے کشمیری رہنماؤں نے واشنگٹن میں ایک اجلاس میں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری حق خود ارادیت سے کم کوئی چیز قبول نہیں کریں گے۔ مودی سرکار نے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے 22 جنوری کو بابری مسجد کے مقام پر رام مندر کے افتتاح کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ ڈی ڈبلیو کے مطابق انتخابات میں انتہا پسند ہندوؤں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے بی جے پی نے مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں زمین تنگ کر دی ہے۔ رام مندر کے افتتاح کی تاریخ قریب آتے ہی انتہا پسند ہندوؤں نے ملک میں انتشار اور فسادات کو پھیلانا شروع کر دیا۔ رام مندر کے افتتاح کے حوالے سے مسلمان رہنما نے کہا کہ رام مندر کا استعمال ہندوستان کو پولرائز کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ہندو انتہا پسندوں نے 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد پر حملہ کر کے مسجد کو شہید کر دیا تھا۔ رام مندر کا افتتاح ہندو مسلم کو تقسیم کرنے اور انتخابی فائدہ حاصل کرنے کا مودی سرکار کا ایک اور حربہ ہے۔ ناظرین، اب بات کریں مشرق وسطیٰ کی صورتحال کی تو غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں نہتے فلسطینیوں پر اسرائیل کے مظالم جاری ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیلی حملوں میں مزید 135 افراد شہید ہو گئے۔ حملوں میں اب تک شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 23,843 ہو گئی ہے، جس میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے۔ قابض اسرائیلی فوج کے حملوں میں زخمیوں کی تعداد 60,300 سے تجاوز کر گئی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق صہیونی فورسز نے غزہ کے جنوبی شہروں خان یونس اور رفح میں شدید بمباری کی ہے۔ رفح میں ایک گھر پر اسرائیلی حملوں میں 2 سالہ بچی سمیت 14 فلسطینی شہید ہو گئے۔ حملوں کی وجہ سے غزہ کے بیشتر علاقوں میں مواصلات کا نظام بھی درہم برہم ہے۔ انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے علاقے کا بیرونی دنیا سے رابطہ منقطع ہے۔ غزہ کے سرکاری میڈیا آفس کا کہنا ہے کہ الاقصی شہداء ہسپتال میں ایندھن کی قلت کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ICU اور بچوں کے یونٹ میں مریضوں کی زندگیوں کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کے مظالم کا سلسلہ جاری ہے۔ صہیونی فوجیوں نے مقبوضہ مغربی کنارے میں 3 فلسطینی نوجوانوں کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ فوجیوں نے مختلف علاقوں میں گھر گھر تلاشی کی کارروائیوں میں متعدد نوجوانوں کو گرفتار بھی کیا۔ اقوام متحدہ کے انسانی امداد کے سربراہ مارٹن گرفٹس نے فلسطینی علاقوں کو خالی کرانے کی اسرائیلی وزراء کی دھمکیوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ سلامتی کونسل میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ غزہ میں انسانی زندگیوں کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ انہوں نے سیکیورٹی کونسل سے جنگ کے خاتمے کے لیے فوری کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد کے لیے پاکستان کی جانب سے امدادی سامان کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ غزہ کے لیے پاکستان سے مزید 20 ٹن امدادی سامان کی چوتھی کھیپ روانہ کر دی گئی ہے۔ امدادی سامان پاک فضائیہ کی خصوصی پرواز کے ذریعے نور خان ایئر بیس سے روانہ کیا گیا۔ کھیپ میں تقریباً 20 ٹن ضروری اشیاء پر مشتمل سرجیکل طبی سامان، خشک کھانے کی اشیاء کے علاوہ حفظان صحت کی کٹس بھی شامل ہیں۔ خصوصی پرواز امدادی سامان لے کر اردن پہنچے گی، جسے پاکستانی سفیر وصول کریں گے۔ وہاں سے امدادی سامان غزہ روانہ کیا جائے گا۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی، پاکستان میں فلسطین کے سفیر احمد ربی، NDMA، وزارت خارجہ اور مسلح افواج کے سینئر افسران سامان روانگی کے وقت نور خان ایئر بیس پر موجود تھے۔ وزیر خارجہ نے فلسطینی عوام کی بھرپور حمایت کا اظہار کیا اور غزہ میں شہریوں بالخصوص خواتین اور بچوں کے خلاف اسرائیل کی جانب سے طاقت کے بھرپور استعمال کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مشکل کے اس گھڑی میں فلسطینی بھائی بہنوں کے ساتھ ہے اور ان کی حمایت جاری رکھے گا۔ پاکستان کی جانب سے فلسطین کے لیے اب تک 220 ٹن امدادی سامان روانہ ہو چکا ہے۔ امریکی فوج نے کہا ہے کہ اس نے یمن کے حوثی باغیوں پر ایک اور حملہ کیا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق امریکی سینٹرل کمانڈ کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ تازہ حملے میں امریکہ اور برطانیہ نے زمینی میزائلوں کا استعمال کرتے ہوئے حوثی ریڈار سائٹ کو نشانہ بنایا ہے۔ حوثیوں کی ریڈار سائٹ پر یہ حملہ ملک بھر میں متعدد حملوں کے ایک دن بعد کیا گیا ہے۔ ادھر یمن کی صورتحال پر غور کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس ہوا۔ روس کی درخواست پر طلب کیے گئے اجلاس میں مشرق وسطی اور خطے میں امن کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے سربراہ انتونیو گوتریس نے تمام فریقین سے علاقائی امن اور استحکام کے مفاد میں کشیدگی سے گریز کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ناظرین، سعودی عرب نے حج سیزن کے لیے آپریشنل سرگرمیاں شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سعودی وزیر حج اور عمرہ نے جدہ میں 4 روزہ کانفرنس کے اختتام پر کہا کہ عازمین حج کی سہولت کے لیے رہائش، لاجسٹک خدمات، صحت کی دیکھ بھال، نقل و حمل، ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت سے متعلق متعدد معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ تقریب میں سعودی ویژن 2030 کے تحت نئی خدمات اور جدید ٹیکنالوجی کا آغاز کیا گیا ہے۔
निगरान वफाकी वज़ीर IT और टेली मवासलात डॉक्टर उमर सैफ ने कहा है कि निगरान हुकूमत ने अपने 4 माह में वो काम किए जो कई साल से इल्तवा का शिकार थे। अपने वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि निगरान दौरे हुकूमत के 4 माह के दौरान वजारत IT की कारकर्दगी शानदार रही। वफाकी वज़ीर ने कहा कि जामियात से फारिग 2 लाख IT ग्रेजुएट्स के लिए आलमी मयार की तरबियत का प्रोग्राम शुरू किया है। उन्होंने कहा कि फ्रीलांसर्स को एक छत तले सहूलियात की फराहमी के लिए 10,000 रोजगार मराकज़ बना रहे हैं। निगरान वफाकी वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा है कि 10,000 एकड़ पर सनती जोन कायम करने जा रहे हैं, जिससे कराची के लाखों लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे। कराची में फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमें चाहिए कि अपनी मसनूआत को बैनुल-अक़वामी मंडियों तक रसाई देने के लिए सनतकारों की मदद करें। FPCCI के सदर आतिफ इकराम शेख ने कहा कि FPCCI ने अगले 5 साल में $100 अरब के बरामदी हदफ को हासिल करने के लिए वज़ीर तिजारत के इस्लाहाती इक़दाम की हिमायत करने का फैसला किया है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ सफारत खानों में नए तैनात होने वाले तिजारत और सरमायाकारी के अफसरों ने वज़ारत ख़ारिजा का दौरा किया। सेक्रेटरी खारिजा साइरस सजाद काजी ने इक़्तिसादी सफारतकारी को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान के तिजारती और सरमायाकारी अफसरान के अहम किरदार को उजागर किया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक ऑफिसर्स को पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी और इक़्तिसादी सफारतकारी इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में टेक्सटाइल की आलमी नुमाइश शुरू हो गई है, जिसमें पाकिस्तान समेत 60 मुल्कों के 2,800 नुमाइश कुनंदगान हिस्सा ले रहे हैं। बैनुल-अक़वामी तिजारती मेले की तफसील जर्मनी से हमारे नुमाइंदे शबीर अहमद खोकर से जानिए। यूरोप के तिजारती मरकज़ फ्रैंकफर्ट में साल भर मुख्तलिफ आलमी नुमाइशें होती हैं, जिनमें पिछले 53 साल से जारी हाइम टेक्सटाइल मेले को ख़ास अहमियत हासिल है। इस साल मेले में 60 मुल्कों से 2,880 टेक्सटाइल कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। पाकिस्तान की 270 से ज़ायद कंपनी पर मुश्तमिल तिजारती वफद भी नुमाइश में शरीक है, जिनमें से 58 टेक्सटाइल कंपनियां ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम नुमाइश में शामिल हैं। उम्मीद तो यही है कि इंशाल्लाह हमारा बिज़नेस बहुत अच्छा जाएगा, और अभी भी जो रश जिस तरह से हम देख रहे हैं, तो माशाल्लाह से इस वक्त कस्टमर्स भी जितने सारे सीरियस कस्टमर्स जितने वो यहाँ पे आए हैं, ठीक है ना, और कुछ प्लेसमेंट्स भी हो रही हैं, कुछ कस्टमर से मीटिंग्स भी हो गई। ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। आई एम वेरी एक्साइटेड कि हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हम अपने प्रोडक्ट्स दिखाएं, सबको अपनी स्ट्रेंथ दिखाएं अलकरम पे, और एज ए कंट्री भी अपनी स्ट्रेंथ दिखाएं। हाइम का तिजारती मेला यूरोप में टेक्सटाइल की मसनूआत मुतारफ़ कराने का बेहतरीन ज़रिया है। फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तान की कमर्शियल अताशी आमना नईम और कौंसल जनरल जाहिद हुसैन ने पाकिस्तानी नुमाइश कुनूनगान के स्टालों का दौरा किया और इनकी हौसला अफजाई की। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई है कि जो बड़े सीरियस किस्म के जो बायर्स हैं, उनकी एक बहुत बड़ी तादाद जो पाकिस्तानी कंपनियां हैं उनके स्टॉल्स के ऊपर मौजूद हैं। जो मेरी बातचीत हुई पाकिस्तानी एग्जिबिटर्स से, तो उसमें भी यही चीज़ मुझे उन्होंने बताई कि वो बड़े मुतमईन हैं यहाँ पे, जो उनकी प्रोडक्ट्स की जो लोगों की दिलचस्पी है उसमें। हाइम टेक्सटाइल 2024 में पाकिस्तान चौथा बड़ा मुल्क है। पाकिस्तानी नुमाइश कुनूनगान के हौसले बुलंद हैं और इन्हें फ्रैंकफर्ट से बड़े पैमाने पर बरामदी आर्डर्स मिलने की तवक्को है। पाकिस्तान होम टेक्सटाइल, सूती कपड़े और फैब्रिक बरामद करने वाला दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। हाइम टेक्सटाइल की आलमी नुमाइश में इसके स्टॉल अपनी मियारी मसनूआत की वजह से गैर मुल्की ताजरों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। शबीर अहमद खोकर, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, फ्रैंकफर्ट। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वज़ीरिस्तान और डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों की मौजूदगी के मुसद्दक़ा खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द मारे गए। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में किए जाने वाले ऑपरेशन में फायरिंग के शदीद तबादले के दौरान इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर तबस्सुम उर्फ कादर मान अपने साथी साजिद उर्फ सरकुंदी के हमराह मारा गया। डेरा इस्माइल खान के इलाके कराची में होने वाले दूसरे ऑपरेशन में मजीद 2 दहशतगर्द वास्ले जहन्नुम हुए। मारे जाने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, शहरियों की टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी की मुतादिद वारदातों में मतलूब थे। मुकामी आबादी ने दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन को सराहते हुए अपनी मुकम्मल हिमायत का इयादा किया है, ताकि दहशतगर्दी की लानत का खात्मा किया जा सके। लकी मरवत में शहीद होने वाले सिपाही मोहम्मद अफजल शहीद के बिम्बर आज़ाद कश्मीर और सिपाही अबरार हुसैन शहीद की नमाज जनाजा मानसहरा में अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक शोहदा को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया है।
नमाज जनाजा में सीनियर अफसरान, जवानों, शहदा के लवाहिकीन और अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अफवाज पाकिस्तान मादर वतन से दहशतगर्दी की लानत हर कीमत पर खत्म करने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान से गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज 796 अफगान शहरियों पर मुश्तमिल मजीद 55 खानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई गई है। अब तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,66,410 हो गई है। पाक अफगान सरहद तोरखम पर अफगान ड्राइवर्स के लिए वीजे और पासपोर्ट की शराइत आयद कर दी गई है। तोरखम सरहद पर तैनात हुकाम के मुताबिक अफगान ड्राइवरों को माजी में कई बार इस शर्त से इस्तिस्ना दिया गया था। 9 मई को मखसूस जमात के सरकर्दा कारकुनों के बराह रास्त मुलव्वस होने के नए शवाहिद मंजर आम पर आ गए। वीडियो में शरपसंद हुजूम को लाहौर कंटोनमेंट के दाखिली दरवाजे के सामने सड़क ब्लॉक करते देखा जा सकता है। मखसूस जमात का कारिंदा इबाद फारूक मुश्तिल हुजूम को मजीद तोड़ फोड़ पर उकसाता दिखाई दे रहा है। हाथों में पार्टी झंडे उठाए डंडा बरदार मुश्तिल सरपसंदों को चेक पोस्ट गिराते और साइन बोर्ड तोड़ते भी देखा जा सकता है। क्या इन वाज़े नाकाबिले तरदीद शवाहिद की रोशनी में मखसूस जमात के मुलव्विस कारिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक हैं? कौमी मफाद का तकाजा है कि इन शरपसंद अनासिर को कानून के कटहरे में लाया जाए ताकि आइंदा इस तरह की शरंगेजी को दोहराया ना जा सके। अवाम ने एक बार फिर 9 मई को शरपसंदी फैलाने वालों को सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि 9 मई को शरपसंदी फैलाने वाले दुश्मन से भी बदतर हैं। ये अवाम और फौज को लड़वाने की एक साजिश थी। पीटीआई ने अपने ही मुल्क को नुकसान पहुंचाया। 9 मई के जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। पीटीआई वालों ने बहुत ज्यादती की है। 9 मई को अपने मुल्क को नुकसान दिया है। इंतहाई काबिल मुजम्मत हरकत की है। 9 मई का वाकया ये एक साजिश थी, ठीक है, और कभी भी ऐसा नहीं होता कि पहले भी लीडर गिरफ्तार होते रहे, ये कोई नया लीडर गिरफ्तार तो नहीं होता ना कि आप पाकिस्तान में चढ़ दौड़े। जो भी इसमें मुलविस हो इसको जो है कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। 9 मई को पीटीआई वालों ने अपना असल चेहरा अवाम को दिखाया। इनका बाइकाट करना चाहिए जिन्होंने ये किया 9 मई का। इन लोगों ने अस्पतालों को भी नहीं बख्शा, जबकि अगर दुश्मनों के साथ भी जंग लड़ी जाए तो वो भी अस्पतालों पे तकरीबन थोड़ी बहुत परहेज करेंगे। इन शरपसंदों ने दुश्मनों से भी बदतरीन दुश्मन निकले हमारे। नाज़रीन, बरसग़ीर में उर्दू हिंदी तनाज़ नई बात नहीं। भारतीय अखबार ने तफसीली रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि हिंदी ज़बान ने उर्दू पर सबकत हासिल करने के लिए 100 साल जद्दोजहद की। यही हिंदी उर्दू तनाज़ बाद में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तक़सीम की एक वजह भी बना। तफसील इस रिपोर्ट में देखिए। भारतीय अखबार इंडियन एक्सप्रेस में उर्दू हिंदी तनाज़े के तनाजुर में शाया रिपोर्ट में कहा गया है कि 18वीं और 19वीं सदी के अवाइल में बरसग़ीर के उन इलाकों में उर्दू गालिब ज़बान थी जिन्हें आज हिंदी पट्टी कहा जाता है। रिपोर्ट में इसे महज एक गलतफहमी करार दिया गया है कि हिंदू हिंदी और मुसलमान उर्दू बोलते हैं। प्रेमचंद और अमृता प्रीतम जैसे नामवर मुसन्निफीन ने उर्दू में लिखा, हालांकि वो मुसलमान नहीं थे। आज भी पंजाब, बिहार और महाराष्ट्र में उर्दू बड़े पैमाने पर बोली जाती है। रिपोर्ट में यह भी वाजे किया गया है कि हिंदुओं ने अपने जात पात के हवाले से मुतासुबाना रवैये की बिना पे संस्कृत और देवनागरी रस्म खत को खुसूसी तौर पर बरहमनी इस्तेमाल के लिए रखा। 18वीं सदी ईस्वी में आला जात के हिंदू बरहमनों ने अंग्रेजों को मुतासिर करने के लिए संस्कृत को तर्क करके उर्दू को कबूल किया, क्योंकि अंग्रेजों को उर्दू बोलना और पढ़ना निस्बतन आसान लगता था। लेकिन हिंदुओं ने उर्दू को नस्तलीक रस्मुल खत की बजाय देवनागरी रस्म खत में लिखना शुरू किया। 18वीं सदी में उर्दू और हिंदी एक ही जबान थे, सिर्फ इनके रस्मुल खत मुख्तलिफ थे। ताहम बाद में रस्मुल खत का तनाज़ा तूल इख्तियार करता चला गया। आज़ादी के बाद उर्दू पाकिस्तान की कौमी जबान करार पाई, जबकि हिंदुस्तान ने अंग्रेजी के साथ हिंदी को अपनी सरकारी जबान के तौर पर अपनाया। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सिंध के अजीम शायर शेख अयाज के 100वें यौम पैदाइश की मुनासबत से इस्लामाबाद में वफाकी वजारत तालीम और वजारत इत्तलात के ज़ेर एहतमाम रंगारंग परफॉर्मेंसेस से मुज़य्यन तकरीब का इन्नकाद किया गया। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी, वज़ीर तालीम मदद अली सिंधी, जमाल शाह और दीगर ने शेख अयाज के नज़रियात और काम को खिराज अक़ीदत पेश किया। रिपोर्ट कर रही हैं मरियम मलिक। शायरी से नजरियात की आबियारी करने वाले अजीम सिंधी शायर शेख मुबारक अली अयाज अलमारूफ शेख अयाज शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के बाद सिंध में शायरी का बड़ा नाम, जो तरक्की पसंद सोच और मज़ाहमत का इस्तारा भी बने। 100 साला यौम पैदाइश की तकरीबात पर इस्लामाबाद में यादगार तकरीब का इनेकाद किया गया।
निगरान वफाकी वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने तकरीब से खिताब में कहा कि शेख अयाज की बतौर सियासतदान, चांसलर और शायर शख्सियत की कई जहतें थीं और वो सब में बाकमाल थे। इस मुल्क के एक बहुत बड़े शायर, अदीब और शायद कम लोगों को पता हो, अफसाना निगार, ड्रामा नवीस, ऑपरा राइटर और एक सियासी कारकुन जिसने पूरी जिंदगी जमहूरियत और समाजी इंसाफ और आलमगीरियत के उसूलों के लिए लड़ते हुए गुजारी, उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। ही रात ॾिसो कंकर न हणो, ईंदो न वरी ही वणजारो। ये हीरे देखें, ये कंकर न बरसाएं, ये बंजारा फिर वापस नहीं आएगा। ही रात ॾिसो कंकर न हणो, ईंदो न वरी ही वणजारो। कुछ ॾात ॾिसो पोइ बात करियो, ही शोर अजायो आ प्यारा। वजीर तालीम मदद अली सिंधी ने शेख अयाज की जिंदगी पर बनाई डॉक्यूमेंट्री के साथ उन्हें खराज अकीदत पेश किया और कहा पाकिस्तान में फैज अहमद फैज, अजमल खटक, शेख अयाज जैसे अफराद ने आवाम की बेदारी के लिए काम किया। शेख अयाज की 60 किताबें शाया की जा चुकी हैं, उनका नाम हमेशा याद रखा जाएगा। शेख अयाज को हम क्यों याद करते हैं? इसी वजह से याद करते हैं कि उसने जो काम किया, उसने जो शायरी की, वो आज जो है सिंध के नौजवानों में एक बेदारी पैदा कर चुकी है। जमाल शाह ने भी भरपूर खराज अकीदत पेश किया। कुछ लोग ऐसे हैं जमीन पे थे और रहेंगे, आते रहेंगे, जिनको हम शेख अयाज कह सकते हैं, इसलिए कि वो आगाह थे, दाना थे, समझदार थे, बहादुर थे, सखी थे। तकरीब में शेख अयाज के कलाम पर पेश किए गए सकाफती रक्स ने भी खूब समा बांधा। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सियालकोट में तिजारती सहूलत मरकज़ का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला ने कहा कि इस मरकज़ में कारोबारी हजरात को 124 NOCs एक छत तले मिलेंगे। उन्होंने हिदायत की कि सरमायाकारों की सहूलत के लिए NOCs का इजरा 14 रोज़ में यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि ये पंजाब हुकूमत का फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसका मकसद सरमायाकारों को सहूलियात फराहम करना है। उन्होंने कहा कि चंद रोज़ में मुल्तान, गुजरांवाला, फैसलाबाद और रावलपिंडी में भी इस तरह के सेंटर्स बनाए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला सैयद अरशद हुसैन ने कहा कि खुशहाल खैबर पख्तूनख्वा प्रोग्राम शुरू किया है। 5 लाख नौजवानों को मार्केट बेस्ड ट्रेनिंग देकर बैरून मुमालिक रोजगार के लिए भेजेंगे। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद कैडेट कॉलेज सवापी में यौम वालिदैन के मौके पर मुनक्कदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि तलबा हमारा कीमती असासा और मुस्तक़बिल के मेहमान है। इस मौके पर वज़ीर आला ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट्स में ट्रॉफीज, मेडल्स और शील्ड तकसीम किए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि तालीम याफ्ता नौजवान सिर्फ अपने खानदान के लिए ही नहीं बल्कि मुआशरे और मुल्क मिलत के लिए भी एक असासा होते हैं। कराची में जिनाह सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के 5वें कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि मैं पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में नौजवानों का बड़ा किरदार है। तकरीब से जिनाह सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने भी खिताब किया। गवर्नर सिंध ने नुमाया पोजीशन लेने वाले तलबा और तालिबात में शील्ड्स भी तकसीम किए। सिंध के गवर्नर कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि हमें मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़ते हुए मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना हिस्सा डालना होगा। गवर्नर हाउस कराची में दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के 11वें कॉन्वोकेशन से खिताब में उनका कहना था कि तलबा तालिबात मुल्क का मुस्तकबिल है। फारिगुल तहसील तलबा को चाहिए कि वो मुल्क को कौम की खिदमत करें। नुमाया पोजीशन लेने वाले तलबा तालिबात को गोल्ड मेडल और शील्ड दिए गए। लाहौर में वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स और MS कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताही सेशन हुआ। तकरीब से खिताब करते हुए निगरान सूबाई वजीर से प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि तारीख में पहली बार पंजाब के निज़ाम सेहत में बेहतरी लाने पर खास तवज्जो दी जा रही है। सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। उन्होंने कहा कि तारीख में पहली बार पंजाब के सरकारी अस्पतालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के निज़ाम को मुतारिफ करवाया गया है। तकरीब में निगरान सूबाई वज़ीर महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर डॉक्टर जमाल नासिर, सेक्रेटरी सेहत पंजाब अली जान खान, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के वाइस चांसलर्स ने शिरकत की। लाहौर बार के सालाना इंतखाबात में आसमा जहांगीर ग्रुप के सदारती उम्मीदवार मुनीर हुसैन भट्टी 3834 वोट लेकर सदर मुंतखब हो गए। लाहौर बार के सालाना इंतखाबात में सीनियर नायब सदर की नशिस्त पर निसार अकबर भट्टी 2931 वोट लेकर कामयाब।
2931 वोट, जबकि राना इमरान सरवर 2651 वोट लेकर नायब सदर मुंतखब हुए, जबकि राना नईम ताहिर 4010 वोट लेकर सेक्रेटरी जनरल, राव तहसीन शरीफ 2799 वोट लेकर सेक्रेटरी मुंतखब हुए। वकला तंजीमों ने जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी। पोटोहार यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम खिते पोटोहार से निशान हैदर पाने वाले पाक फौज के अजीम शहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीब का इनेकाद हुआ। रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में होने वाली पोटोहार नेशनल अवार्ड की तकरीब की सदारत PUJ के चेयरमैन डॉक्टर अतीक फरहाद ने की। तकरीब में शहादा के लवाहिकीन को एजाज़ी असनाद और शील्ड्स दी गईं। अटक, जेहलम, चकवाल, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के सहाफ़ियों को भी उनकी पेशा वराना खिदमात के इतराफ़ में मेडल्स और सर्टिफिकेट्स दिए गए। फ़ज़ाई एजुकेशन सिस्टम स्कूल इस्लामाबाद में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए नुमाइश का इन्नकाद किया गया। नुमाइश में खानों समेत मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए। नुमाइश का बुनियादी मकसद ग़ज़ा के मुतासरीन की मदद के लिए फ़ंड्स जमा करना था। बच्चों की जानिब से मुख्तलिफ ममालिक के सकाफती स्टॉल्स भी लगाए गए। बच्चों ने मुख्तलिफ सरगर्मियों के जरिए फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का इज़हार किया। पाकिस्तान स्वीट होम के सरपरस्त आला ज़ुमर्द खान ने नुमाइश में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। गुज़श्ता सैलाबी सूरत हाल में मिट्यारी जिला के मुतासिर होने वाले अफराद को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के इश्तराक से ज़कात फाउंडेशन अमरीका की जानिब से मकानात तामीर करवा के दिए जा रहे हैं। तफसील बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे इफ्तिखार आदिल। गुज़श्ता सैलाबी सूरत हाल में मटियारी जिले में भी मुतासिर होने वाले कई गरीब बेसहारा अफराद शदीद सर्दी में परेशान हैं। वहाँ ओवरसीज पाकिस्तान डोनर्स के इश्तराक से ज़कात फाउंडेशन अमरीका की जानिब से सिंध के दीगर जिला की तरह मटियारी जिले के मंसूरा डेपर इलाके में गरीब बेसहारा यतीम सैलाब मुतासरीन के 2 कमरों पर मुबनी पक्के मकानात ज़ेर तामीर हैं। ज़कात पूरे इस लोअर सिंध के अंदर 200 घर बनाए हैं, जिनमें से इस बस्ती के अंदर जो सबसे ज़्यादा मुतासर लोग थे उनके लिए जो है 25 घर बनाए। बड़ी खुशी हुई मुझे कि रीड फाउंडेशन की टीम जो है यहाँ पूरी तरीके से हमारी मदद के लिए तैयार है। हमारी जो जगह थी वो गिर गई थी, आसमान खुला था, उसने बना के दी, उनको दुआ करते हैं। शुक्रगुजार है ज़कात फाउंडेशन वालों की तरफ से जो हमें घर मिले हैं। मेरे 8 बच्चे हैं, कच्चा मकान था, वो जो बरसातें आई थी, बरसातों में वो गिर गया था। दीगर तंजीम के अरकान और मुखय्यर हजरात भी सैलाब मुतासरीन की मदद करें ताकि ये बेहतर जिंदगी बसर कर सकें। इफ्तिखार आदिल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मटियारी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की खबरों में खुश आमदीद। नाज़रीन, आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शिमाली इलाकों में मतला अब्र आलूद रहने के अलावा गिलगित और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में शदीद धुंध और स्मोक छाई रहेगी। खित्ता पोठवार और कश्मीर में सुबह के औकात में बाज़ मकामात पर कोहरा पड़ने की तवक्को है। नाज़रीन, आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील की बात करेंगे, जो कि कुछ यूँ रही। स्कर्दू में कम से कम दर्जा हरारत -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लह में -6, गोपस -5, कालाम -4, जबकि गिलगित में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूँ रही। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 4, कराची 10, पेशावर में भी 4, जबकि कोयटा में 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही। खेलों की खबरों में खुशामदीद और स्पोर्ट्स बुलेटिन में बात करते हैं पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 सीरीज के हवाले से। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा T20 मैच कल हैमिल्टन में खेला जाएगा। मैच दिन 11:10 पर शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पे बराह रास्त दिखाया जाएगा। कौमी टीम ऑकलैंड से हैमिल्टन पहुंच गई। हैमिल्टन में 5 खिलाड़ियों मोहम्मद नवाज, हसीबुल्लाह, साहबजादा फरहान,
वसीम जूनियर और जमान खान ने 2 घंटे प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। 5 मैचेस की सीरीज में मेजबान न्यूजीलैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पहले मैच में कीवीज ने 46 रन से कामयाबी समेटी। बलूचिस्तान में खेलों के हवाले से तारीख रकम। साल 2023 के दौरान बलूचिस्तान में खेलों के 30 बड़े मुकाबलों का इनेकाद किया गया। तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान में खेलों का आगाज गुज़श्ता साल 20 से 27 जनवरी तक स्पोर्ट्स फेस्टिवल और बीच गेम्स से हुआ। 5 फरवरी को क्वेटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान PSL का नुमाइशी मैच खेला गया। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर खवातीन क्रिकेट मैच भी खेला गया। 20 फरवरी से 11 मार्च तक बलूचिस्तान के तमाम अजला में पहले बलूचिस्तान गेम्स मुनक्किद किए गए। खेलों का फाइनल राउंड 12 से 20 मार्च तक क्वेटा में हुआ। 9 से 26 अप्रैल तक रमजान स्पोर्ट्स फेस्टिवल, जबकि जून में अंडर 13 क्रिकेट टूर्नामेंट पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ। 20 से 26 जून तक आल बलूचिस्तान चीफ मिनिस्टर क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। 18 से 20 जुलाई तक आल क्वेटा टेबल टेनिस वुमेन चैंपियनशिप मुनक्किद हुई। यौम आज़ादी के मौके पर क्वेटा में 8 से 14 अगस्त तक आल पाकिस्तान आज़ादी क्रिकेट गोल्ड कप, जबकि 10 से 14 अगस्त तक सूबे के तमाम अजला में आज़ादी स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स का इनेकाद किया गया। महकमा खेल के ज़ेर एहतमाम 13 सितंबर को नेशनल गेम्स में बलूचिस्तान के लिए तमगे जीतने और शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले एथलीट्स के लिए नकद इनामात की तकरीब का एहतमाम किया गया। मुल्क भर के खिलाड़ियों, खेलों की तंजीमों और सूबे के अवाम ने 34वें नेशनल गेम्स कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा किया। 10 सितंबर से 1 अक्टूबर तक क्वेटा सुपर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट अंडर 13 और अंडर 16 का इनेकाद किया गया। 19 सितंबर से 8 अक्टूबर तक आल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान फुटबॉल गोल्ड कप का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान के सबसे बड़े फुटबॉल मेले में मुल्क भर से 60 से ज्यादा टीमों ने हिस्सा लिया। आल पाकिस्तान बलूचिस्तान बैन सूबाई खवातीन वॉलीबॉल चैंपियनशिप का इनेकाद 5 से 9 अक्टूबर 2023 तक किया गया, जबकि 11 से 17 अक्टूबर तक 53वीं कौमी वॉलीबॉल चैंपियनशिप भी मुनक्किद हुई। 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक महकमा खेल के ज़ेर एहतमाम शहीद नवाबजादा मीर सिराज खान रईसानी स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। आल बलूचिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट 2 हिस्सों में 24 अक्टूबर से 2 नवंबर तक खुजदार और क्वेटा में मुनक्किद किया गया। 4 से 6 नवंबर तक नवाबजादा मीर जमाल खान रईसानी अंडर 10 वुमेन्स फुटसाल टूर्नामेंट, जबकि 11 से 15 दिसंबर तक जनूबी बलूचिस्तान स्पोर्ट्स यूथ एंड कल्चरल फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। पाक फौज और हुकूमत पाकिस्तान ने तरक्याती मनसूबों, खेल, तालीम, सेहत और रोजगार के शोबों में कलीदी किरदार अदा करते हुए बलूचिस्तान के अवाम को खुशहाली की राह पर गामजन किया। जद्दा में पाकिस्तान कौंसल जनरल खालिद मजीद की जानिब से साबिक टेस्ट क्रिकेटर शोएब अख्तर के एजाज में इशाइया दिया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए कौंसल जनरल खालिद मजीद ने कहा कि खेल कौमों को करीब लाने में अहम किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी अपने क्रिकेट के तजर्बे को सऊदी अरब के साथ शेयर कर सकते हैं। शोएब अख्तर ने मुंतजमीन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। दुनिया के सर्द तरीन इलाके साइबेरिया में मैराथन रेस का इनेकाद किया गया। -52 डिग्री सेंटीग्रेड में खून जमा देने वाली सर्दी में होने वाली मैराथन और हाफ मैराथन मुकाबले में 38 अफराद ने शिरकत की। रेस के आगाज से कबल शुरका का तिब्बी मुआयना किया गया। सर्दी से बचाव के लिए शुरका ने थर्मल मास्क का इस्तेमाल किया। सर से पांव तक गर्म मलबूसात में लिपटे रनर्स को रास्ते में रिफ्रेशमेंट पॉइंट्स पर चाय और नाश्ता भी फराहम किया गया। ओमियाकुन में दर्जा हरारत -71 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है और जनवरी के महीने में यहाँ का औसत दर्जा हरारत -50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। स्पोर्ट्स डेस्क से फिलवक्त इतना ही। अब चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। बहुत शुक्रिया शफीक। नाज़रीन, खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।